नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। अभी अब सही हुई? अब ठीक हुई है? हेलो, अब सही हो गई आवाज? वो सर थोड़ी सी सर अभी भी कट रही है। कट के आ रही है सर। पता नहीं क्यों, ये क्या है। मैंने वो माइक तो लगाया हुआ ठीक से। अभी देखते, अभी शायद बेहतर हो। मैं तो थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। राइट, तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली स्क्रीन पे इंटरफेरेंस बहुत हो रही है जी। So we were talking about the rational medicine used and effective medicine supply management. Now the supply chain management is all entirely changed because e-marketing, e-supply, e-procurement, electronic, digital forms, new paradigm shift. Supply chain management are key component of the accessible, sustainable, and affordable, and equitable healthcare system, which ensure the efficacy, safety, and quality of medicines. And it is clear that pharmacy has an important role to play in the health sector reform process. Means you are one of the important player of the team, that how you can take care of the patients or help out to the healthcare system. To do so, however, the role of the pharmacist need to be redefined and reoriented. Means now we have to define the new role of the pharmacist. That is not only the dispensing; it's an intervention. It's a pharmaceutical care. It's a national medicine, supply chain management, and a lot of other things. To do so, however, the role of the pharmacist need to be redefined and reoriented. Pharmacists have the potential to improve therapeutic outcome and patient quality of life within available resources, and must position themselves at the forefront of the healthcare system. Means you have to come forward as a pharmacist in the healthcare system. The movement towards pharmaceutical care is a critical factor in this process, while efforts to communicate the correct information to the patient are as important as providing the medicine itself. Means the pharmacist must have a knowledge. Right. So we were talking about the role of a pharmacist, which is important. There is a reform in the pharmaceutical practice. It is clear that pharmacists have an important role to play in the health sector reform process. To do so, however, the role of pharmacists need to be redefined or reoriented. Pharmacists have the potential to improve therapeutic outcome and patients' quality of life within available resources. Means this is a very important work of a pharmacist. Means patient quality of life, how he can bring patient into a quality of life, and must position themselves on the forefront, that is the leadership. The movement towards pharmaceutical care is a critical factor in this process. While efforts to communicate the correct information, this is also very important. If pharmacy doesn't have the information about the drugs, how can so the movement towards pharmaceutical care is a critical factor in this response, while efforts to communicate the correct information to patient are as important as providing the medicine itself. Pharmacists also have a vital contribution to make a patient care through managing drug therapy and concurrent non-prescription or alternative therapies. Means if a patient is taking homeopathic drugs with allopathic drugs, patient is taking herbal drugs with allopathic drugs, you have to manage it. Means you must have a knowledge of alternative medicine also. That's why you have to.
The pharmacy profession, medical therapy is the most frequent use for the treatment intervention in any health practice setting. Means you have to intervene in between the treatment if you find there is something wrong is going on. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। जी सर जी हेलो। सर आज स्लाइड 74 से पढ़ना था ना, क्लिनिकल जजमेंट से। कोई बताता तो है नहीं, आप लोग इतने देर के बाद 20 मिनट के बाद बेटा आप लोगों को प्यार आता है। मुझे तो मेरे पास जो सर खुला वो आपका नेट इशू चल रहा था ना, बार बार स्लाइड ऑफ हो रही थी, इसलिए नहीं बताया। मैंने सोचा आपका नेट कनेक्शन सही हो जाए फिर बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। 74 पे थे हम। जी सर। सर क्लिनिकल जजमेंट। एवोल्यूशन कहते हैं जब आपका किसी चीज की प्लानिंग हो जाती है, जिसे फॉर्मुलेशन कहते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है जिसको एक्शन कहते हैं, उसके बाद एवोल्यूशन आता है जो लास्ट रिजॉर्ट होता है। मैनेजमेंट का ये बेसिक फंडामेंटल है। तो एवोल्यूशन मीन्स टू जजमेंट, क्लिनिकल जजमेंट है प्रोसेस बाय व्हिच द क्लिनिशियन यूटिलाइज इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन टू डिटरमिन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जब वो चीज़ों को देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एवोल्यूट करता है कि इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या चीज़ करूँ कि पेशेंट अच्छा हो जाए। क्लिनिकल फाइंडिंग आपकी क्या है, एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन कितना हुआ है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन मतलब हार्ट कितना काम कर रहा है, हाथ पांव कितने काम कर रहे हैं, किडनी कितनी काम कर रही है, लीवर कितना काम कर रहा है। सोशल सर्कमस्टांसेस, होम एनवायरनमेंट क्या है, मालूम चला घर के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े चलते रहते हैं, स्ट्रेस आप दे रहे हैं, बाप बच्चों को डांटता रहता है, जुल्म सितम ढाता है तो स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं। ये सोशल कंसिडरेशन है। होम एनवायरनमेंट, होम की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, एक कमरे में सारी फैमिली रहती है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपरली, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, न्यूट्रिशन खाने के लिए नहीं है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितने पेरेंट्स केयर करते हैं बच्चों की, फैमिली में भाई भाई से मोहब्बत करते हैं या आपस में झगड़ते रहते हैं। ये सारा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आता है। एक्सटर्नल लॉस ऑफ फंक्शन और सोशल कंसिडरेशन। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, घर में कौन है जो सुस्त है, जो काम नहीं करता, कौन है जो हर काम में हाथ बटाता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की क्या है, ये सारा हम जजमेंट करते हैं क्लिनिकल, जो पेशेंट को देखना होता है। इस्टेब्लिश, अब हमने अपना गोल इस्टेब्लिश करना है। व्हाट विल बी द ऑप्शन लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द पेशेंट बेस्ड ऑन रीजन फॉर रेफरल। पेशेंट आया क्यों है, किसने रिफर किया है मेरे पास, एक जीपी ने उसको देखा, देखने के बाद कहा फला फला डॉक्टर के पास जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको दिखा। फिर पेशेंट जीपी के पास जाता है, फिर वो कहता है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, आप एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। ठीक है, सर रेफरल करते हैं। पर्सनल गोल्स फॉर थेरेपी, आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के, आपकी थेरेपी क्यों दे रहे हैं, क्या इस थेरेपी से पेशेंट ठीक हो जाएगा। मोटिवेशनल लेवल क्या है आपका और पेशेंट का, दोनों का पर्सनल गोल फॉर थेरेपी। आपका डॉक्टर खुद मोटिवेट ना हो, कहेगा चलो यार अगला पेशेंट भेजो, चलो अगला पेशेंट भेजो, चलो अगला पेशेंट भेजो, सारे पेशेंट देखता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, मीन्स ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, इज नॉट अ मोटिवेशनल, मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर कि पेशेंट को मैंने ठीक करना, प्रॉपरली देखना, टाइम देना पेशेंट। रिस्पॉन्स, ये देखिए इस लेवल पे आके आपके पास डॉक्टर्स की फीस बदल जाती है। हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा, मगर जनरली आगा खान आप जाते हैं या बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, साउथ सिटी जाते हैं या जो है ना मेमन हॉस्पिटल जाते हैं, जो भी आपका बड़े बड़े हॉस्पिटल है कराची के, जो अच्छे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें जाने के बाद डॉक्टर आपको टाइम देता है, पेशेंट को, एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटा लगा देता है। ये इसीलिए करता है कि वो हर चीज को इवोल्वेट करता है कि पेशेंट के साथ, पेशेंट का जो, वो खुद मोटिवेटेड नहीं होगा डॉक्टर, उसके पर्सनल गोल्स नहीं होंगे फॉर थेरेपी कि मैंने जल्दी ठीक करना है, तो कैसे ठीक। और यही फार्मासिस्ट का भी काम है। रिस्पॉन्स, पार्टिसिपेशन लेवल इन प्रायर थेरेपी, थेरेपी से पहले आपने कितना पार्टिसिपेट किया है। प्रायर लेवल फंक्शन, सिवियरिटी ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन, क्या फ्रोजन शोल्डर हुआ है, हाथ पूरा नहीं उठता उसका, क्या उसको रोमेटाइड आर्थराइटिस है, घुटने सूजे हुए हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की मूवमेंट बंद हो गई है। आप फिर पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान आप करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज द पेशेंट, आफ्टर हाउ मेनी डेज, डिस्चार्ज पर कौन कौन सी मेडिकेशन आप उसको देंगे जो घर पे बैठ के खाएगा, हु इज गोइंग Excuse टू। me, sir. जी 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 बेटा, जी हेलो। Sir, your screen is not visible to us. ओके जस्ट होल्ड ऑन, मैं करके ट्रांसफर कर देता हूं। आप विजिबल हो गया बेटा।
हेलो, अब नजर आ रहा है? Yes, sir. Now we can see it. ओके ओके। सो डिस्चार्ज प्लान, हाउ यू डिस्चार्ज द पेशेंट। पेशेंट को निकाल नहीं दिया था, जॉब है ठीक हो गया घर चले जाओ, नो, यू हैव टू मेक अ प्लान हाउ टू डिस्चार्ज द पेशेंट। उसकी सारी वाइटल्स लेते हैं, उसकी कंडीशंस देखते हैं, उसको चला फिरा के देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब डिस्चार्ज करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम जाना चाहते हो नहीं, अभी भी तुम्हें कुछ फीलिंग तो नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो नहीं जाना चाहता तो यू आर नॉट गोइंग टू पुश हिम आउट। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? एस्टेब्लिशिंग गोल्स कंटिन्यूस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम, आपका क्या कैलकुलेशन है, पेशेंट कितने परसेंट ठीक हो जाएगा। How can these be documented in objective, measurable and functionable terms? अब आपने कह तो दिया सही हो गया, what are the expected outcomes, आपने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपने किस पे बोला है? क्या उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया? ऑब्जेक्टिव्स आपने हासिल कर लिए। और मेजरेबल क्या है? ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, कार्डियक रिदम, ब्लड की पिक्चर जो आ रही है आपके सामने, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट कितने कितने हैं, ठीक है ना, और उसका यूरिन आउटपुट कितना है, वो अपनी डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, जो मेजरेबल चीजें हैं वो तो कर लें। तो ये तमाम चीजें आपने देखनी होगी। क्लिनिकल जजमेंट, क्रिएटिंग अ ट्रीटमेंट, अब आपने एक प्लान बनाना है ट्रीटमेंट का, व्हाट प्रोसीजर्स मॉड्यूलिटी शुड बी। जो है ना सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ये मेरे पास है, मुझे नहीं पता पीटी से कनेक्टेड। ये पीटी से दोबारा कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आ रहा है। अच्छा, डायग्नोसिस सिम्टोमोलॉजी में आप जाते हैं, WC मोबिलिटी है, वो वॉशरूम जा सकता है नहीं जा सकता है, ठीक है ना, सेल्फ केयर वो कर सकता है नहीं सर कर, स्क्रीन शेयर कर दें। नहीं हो रहा इसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ सोलोइंग डिसफंक्शन, क्या क्या निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा, ओरल फंक्शन, माउथ उसके दांत वात चबाने में उसको मुश्किल हो रही है, स्पीच एंड लैंग्वेज उसकी क्या है, कहीं जबान लड़खड़ा तो नहीं रही है उसकी, वॉइस उसकी कैसी है, अगर वॉइस भारी है, होर्सनेस कहते हैं, हॉर्स नहीं होर्स, होर्सनेस कहते हैं, तो इसका मतलब है मिडिल रिकरेंट लेरेंजियल जो नर्व है उसके अतराफ में स्वेलिंग आ गई है, तो वोकल कॉर्ड जो फूला हुआ है, आवाज भारी हो गई है। ठीक है, तो इसके हमने कम्युनिकेशन एंड ऑडिटरी प्रोसेस देखा, सुनाई दे रहा है उसको, नहीं सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है, ऑडिटरी प्रोसीजर क्या है उसका। Determining the frequency and duration, what is the appropriate time frame that will be required based on the individual needs, उसको टाइम के साथ क्या क्या चीजें चेंज करनी है, देनी है, कब डिस्चार्ज करना है। डज द कंडीशन रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट, क्या ऐसी कंडीशन है कि इमरजेंसी में आप सोलोकॉर्ड उसको लगा दें, उसको हार्ट में डायरेक्ट एड्रेनलिन लगा दें, तो ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, या डिफिब्रिलेटर लगा के उसके हार्ट को चलाने की कोशिश। सॉरी, मैं क्या करूँ, जी जनाब। Does the condition require, is the patient health status stable to tolerate the recommended intensity? Should the intensity be reduced as the patient gain independence? जैसे जैसे वो घर की तरफ जा रहा है पेशेंट हॉस्पिटल से निकल के, तो ये जो इसकी शिद्दत है मर्ज की कम होगी तो हम घर भेजेंगे ना, तो नहीं भेजेंगे ना, तो हमें ये भी देखना होगा। एक फार्मेसिस्ट का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, फार्मेसिस्ट तो वो नहीं रहा जिसको आप पहले देखा करते थे, फार्मेसिस्ट इज entirely different, that way you must take interest in your subject. A comprehensive, well-written evaluation serves as a cornerstone for future clinical reasoning. So, यहाँ पे इसका क्लिनिकल रीजनिंग और देखेंगे कि फ्यूचर डिसीजन हमें क्या लेने हैं, आगे चल के क्या फैसले करने हैं पेशेंट के बारे में। ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन देखेंगे, हाउ डू वी नो व्हेन टू प्रोग्रेस द पेशेंट विद इन देयर एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट प्लान, उस जो ट्रीटमेंट प्लान के दरमियान में वो किस तरीके से वो इम्प्रूव कर रहा है पेशेंट, पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी कैसी है, जीआई जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम उसका कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें हमने
डिसीजन लेने, ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन में देखना है, पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी यूटिलाइजिंग सेफ टेक्निक, द मोबिलिटी, फीडिंग एंड swallowing, यानी चल सकता है, गिर तो नहीं जाता, खाना खुद खा सकता है नहीं खा सकता, निगलने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है, पेशेंट एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल एक्टिविटीज, patient ability to increase consistency of performing functional activity task, ठीक है ना। उसकी स्किल जो है वो बाद देखेंगे कि हमारे पास जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे हम देखेंगे इसको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में। As the patient makes progress towards goal, assessment should occur frequently and be an ongoing process to ensure the treatment strategies are appropriate for the patient plan of care। आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो तरीक़ाकार बनाया है, क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ये तमाम चीज़ें आपने पेशेंट की जो प्लान बनाया उसको भी नज़र में रखना है कि आपका प्लान सक्सेसफुल है या नहीं है। Recertification and evaluation, at least every 30 days formal re-evaluation, recertification should occur for every patient regardless of the पे और सोर्स, ठीक है। आपने उसको दोबारा बुलाना है पेशेंट को फॉलोअप के लिए और रीसर्टिफिकेशन करना है, रीएवोल्यूशन दोबारा उसको एवोल्व करना है, इंप्रूवमेंट उसकी कितनी आई है, जो हमने इंप्रूवमेंट करके भेजी थी उसको उसने मेंटेन किया, उसको प्रोग्रेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट प्लान, प्रोसेस क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कैन अकर विद न्यू क्लिनिकल फाइंडिंग, कोई नई क्लिनिकल फाइंडिंग है, उसका हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, और फेलियर टू रिस्पॉन्स थेरेपी इंटरवेंशन लेस देन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसकी जो रिस्पॉन्स थे थेरेपी के वो खत्म हो गए, ना उसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं, उसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, उसको दूसरी दवाएं दे रहे हैं, और उसका अभी तक जो है ना वो सही नहीं हो पा रहा। मिनिमम प्रोग्रेस देखेंगे, व्हाट क्वेश्चन कैन वी आस्क आवरसेल्फ इफ द पेशेंट इज मेकिंग मिनिमल टू नो प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं हो रहे, ट्रीटमेंट जो है वो हासिल नहीं हो रहा, वो देखेंगे। टाइम ऑफ डे ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट, मेडिकेशन इश्यूज हैं, गोल्स टू चीजें हमें देखने के बाद फिर हम तो ये इस तरीके से हमने पेशेंट के हर काम पे नज़र रखनी है, हर चीज़ पे नज़र रखनी है, ठीक है। उसकी मेडिकेशन से लेके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सबको हमने अपनी नज़र में रखना है कि हमने हासिल किया नहीं किया। इसके अलावा what changes can be made to the treatment approach to improve the patient progress, ठीक है। आपने what changes can be made to the treatment approach to improve the patient progress, alter the time of the treatment in the day, increase the rest breaks, split treatment को दो तीन हिस्सों में बांट दें, reduce frequency, अगर आप बार बार दिन में 3 दफा गोलियां दे रहे हैं तो 2 दफा दें, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करें, ठीक है। सारी चीजें आपने देखनी होंगी। Changes to treatment, provide different treatment strategies to accommodate the patient's need, हो सकता है उसका डायरिया बंद ना हो रहा है तो आपने उसको मेडिसिन चेंज किए, रिवाइज गोल्स, अपने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे, नहीं जी 10 दिन में ठीक हो जाएगा, अब आप 15 दिन का टाइम रखेंगे, 15 दिन में ठीक होगा। हैव अ डिफरेंट थेरेपिस्ट इन द सेम डिसिप्लिन ट्रीट पेशेंट, हो सकता है आप डॉक्टर बदलने के रिकमेंडेशन करें कि जी डॉक्टर साहब के पास इतने दिन आया, इसके इम्प्रूवमेंट का हमारा टारगेट था कि 10% इसकी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो 2% भी इम्प्रूवमेंट नहीं, फिजिशियन चेंज करें। कंडक्ट पीयर रिव्यू और टीम कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस, आप टीम कॉन्फ्रेंस करें, उसमें डिस्कस करें इसको, उसमें डॉक्टर नर्स सबको बुलाएं, आप सबको बुला के डिस्कस करें, ये एज अ प्रोमिस कह रहा हूँ। रिफ्यूजल, if the patient refuses over several days, the therapy program should be put on hold until the patient is willing to attempt performance of the functional activity। अगर पेशेंट क्या मैं तो नहीं करता जी, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं वॉक करूंगा ही नहीं, हालांकि उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वॉक करना बहुत जरूरी होता है, उसकी फ्यूमर का नेक टूट करेंगे तो फिर हम जो है वो सक्सेसफुल होंगे, अगर अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमें ये देखना होगा सारी चीजें एज अ प्रोमिस,
परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी देखनी होगी उसकी। इन्वेस्टिगेशन विद द नर्सिंग स्टाफ शुड अकर टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द रिफ्यूजल। अब आप नर्स से पूछेंगे, नर्स सबसे क्लोज होती है उससे, पेशेंट से, इसने क्यों रिफ्यूज कर दिया ट्रीटमेंट लेने, क्या वजूहात थी। तो कहा जी गोलियां कड़वी थी इसलिए नहीं, गोलियां बड़े साइज की थी इसलिए नहीं ले सके, ये ओरल नहीं सकता, सॉलिंग में इसको डिफिकल्टी है, ये नर्स बताएगी, तो आप इसको इंजेक्टेबल पे डाल दें डॉक्टर साहब, तो आपको फिर वो इंजेक्टेबल डॉक्टर लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन में और आप उसको डिस्पेंस करेंगे। हाउ डू वी नो व्हेन टू डिस्चार्ज आवर पेशेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस मौके पे जो इंटरनल पेशेंट है, जो बेड पे एडमिटेड है आपके पास, को डिस्चार्ज कर पाएंगे। अचीव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द स्किल्ड इंटरवेंशन, अगर आपकी इंटरवेंशन से उसमें कोई बेटरमेंट आई है, then you have to follow or discharge the patient. Progress towards goals have plateau का मतलब टॉप, प्रोग्रेस जो है उसकी टॉप पे जा रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है पेशेंट, बदल गई है, ठीक है, उसकी मेडिकल कंडीशन बदल गई है। तो मेडिकल कंडीशन अगर बदल गई है तो फिर हमें क्या करना होगा, यानी वो बेहतरी की तरफ जाए। फिजिकल लिमिटेशंस, अब फिजिकल लिमिटेशंस में मतलब है प्रोग्रेस प्लेटो पे जा रहा है, कि फिजिकल अब उसको सहारा लेके चलना नहीं पड़ता। रिक्वायर फॉर सेल्फ डिस्चार्ज, वो खुद अब वो चाहता है मुझे डिस्चार्ज कर दो। फिजिशियन डिस्चार्ज ऑर्डर बेस्ड ऑन द फिजिशियन एग्जाम, फिर डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा, उसकी वाइटल साइंस देखेगा, उसकी मूवमेंट देखेगा, उसकी एक्टिविटी देखेगा, उसकी हेल्थ देखेगा, तो उसको डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज टू अनदर फैसिलिटीज में भी वहां से निकाल के कहीं और ले जाए, आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में ले जाएगा, प्राइवेट वार्ड में ले जाएगा। पेशेंट एक्सपायरेशन, अगर पेशेंट एक्सपायर कर गया, डेथ हो गई, तो फिर क्या करें, फिर भी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी डिस्चार्ज बनाना पड़ता है कि पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि आप एज अ फार्मासिस्ट, जो ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर कहलाते हैं आप, है ना, आप फिजिशियन नहीं है, फार्मासिस्ट है। ड्रग थेरेपी एडवाइजर भी आपको कहते हैं, कि आप एडवाइस करते हैं, ड्रग थेरेपी आपसे अच्छी कोई नहीं जानता। वाइल एक्टिवली participating as a member of a medical team, आप टीम के एक मेंबर हैं। इसको हम कहते हैं, जो हमारा मेन इसके काम है वो है मेडिकल थेरेपी की जो मैनेजमेंट है ना, मेडिकल थेरेपी मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिकल थेरेपी जो मैनेजमेंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें आप क्या करते हैं, अ रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल पेशेंट टू ऑप्टिमाइज द आउटकम patient help patient get the most benefits from their medication and detect and prevent costly medication problem। अगर महंगी दवाएं डॉक्टर ने लिख दी है तो आप उसमें हेल्प करें कि उसको डॉक्टर को कहें सर ये अफोर्डेबल पेशेंट नहीं है, इसकी ये मेडिसिन बदल के आप थोड़ी सी इकोनॉमिकल मेडिसिन को डाल दें, ठीक है, ये आप उसमें देखें। MTM कहते हैं इसको, मेडिकल थेरेपी मैनेजमेंट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मॉडर्न वर्ड इंट्रोड्यूस इन दिस एरा। MTM प्रोवाइड्स बाय फार्मासिस्ट, कौन प्रोवाइड कर रहा है MTM, मेडिकल थेरेपी मैनेजमेंट, हु इज द रिस्पांसिबल, फार्मासिस्ट, नॉट द डॉक्टर। प्रोवाइड बाय फार्मासिस्ट द मेडिकेशन थेरेपी एक्सपर्ट रिजल्ट इन a view of all medication prescribed by all prescribers providing care to the patient। आप उसको रिव्यू करेंगे, जो डॉक्टर ने दवाएं लिखेंगे, पर्चे में 10 दवाएं लिखेंगी, आपने रिव्यू करना है कि आपने रिव्यू करके देखना है कि जो डॉक्टर ने दवाएं लिखी हैं वो सही है, उसकी डोज सही है, उसकी कंपनी सही है, उसकी प्राइस सही है, उसकी जो है ना, एग्जाम्पल डॉक्टर ने जो दवाएं लिख के दी हैं और वो ऐसी दवाएं हैं कि TDS खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 दफा होता है ना, सॉरी 24 घंटे में 3 दफा, पहली खाली सुबह 8 बजे, दूसरी खाली 12 बजे, फिर तीसरी खाली रात के 8 बजे, अब चौथी कब खाएगा, वो आधी रात को उठेगा पेशेंट। यू हैव टू चेंज इट, आप उसके टाइमिंग शेड्यूल बदलिए, ऐसे शेड्यूल बनाइए उसका कि वो रात को सोने से पहले गोली खा के सो, ठीक है। इसमें MTM कहते हैं, मेडिकल थेरेपी मैनेजमेंट कहते हैं। ये डॉक्टर्स लिख तो देते हैं
इतनी डेप्थ में जाके आपने सोचते हैं कि हर एक अपने अपने दिमाग से अपने अपने एरिया को सोचता है. In any over-the-counter and herbal product, the patient may be taking to identify and address the medication problem. अगर कोई पेशेंट उसका किडनी फेलियर में गया है और वो हर्बल मेडिसिन ले रहा है, तो यू हैव टू स्टॉप दैट हर्बल मेडिसिन, बिकॉज हर्बल मेडिसिन कॉजेज अ सीवियर किडनी प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सीवियर, जिसकी हमें अलिब्बे भी नहीं पता होती. हम बातें जरूर करते हैं, बट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द फार्माकोलॉजी ऑफ दोज हर्बल ड्रग्स, इट्स वेरी, कुछ हैं जो एलोपैथिक में यूज हो रही हर्बल ड्रग, उसकी तो आपको पूरा पता है, डिजिटैलिस की आपको मालूम है, ठीक है ना, कोकेन की पता है, ओपियम की पता है, ओपियम की सारी फार्माकोलॉजी पता, मगर हजारों जो हर्बल आ गई है उसको किसी को उसकी फार्माकोलॉजी नहीं पता. नींद की फार्माकोलॉजी क्या है किसी को भी नहीं मालूम. प्रॉब्लम में इंक्लूड मेडिकेशन नॉट बीइंग यूज्ड करेक्टली, ठीक है ना, हो सकता है कि सही तरीके से कान के ड्रॉप्स नाक में डाल रहे हो, आपको क्या पता. ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ फार्मेसी. डुप्लीकेशन ऑफ द मेडिकेशन, डॉक्टर जो है 2 कंपनी के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहा है, उसको पता ही नहीं है ये भी चैनल ब्लॉकर, वो विटामिन समझ के दे रहा है, पेशेंट मर जाएगा. अननेसेसरी मेडिकेशन, 4 मेडिकेशन बेकार दे रहा है, उसको जेंटामाइसिन भी दे रहा है, उसको सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी दे रहा है, उसको जो है ना मैक्रोलाइड्स भी दे रहा है, उसको जो है ना पेनिसिलिन ग्रुप भी दे रहा है, डायरिया में आप देखते होंगे, ओमीपैराजोल भी दे रहा है, और जो ना तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे inappropriate medical condition, management condition, और in depth मेडिकेशन रिलेटेड एजुकेशन. हमें मेडिकेशन रिलेटेड एजुकेशन भी देना उसको, ये दवाई है क्या, कंसल्टेशन भी लेनी है डॉक्टर से, एंड एडवाइस प्रोवाइड टू पेशेंट, फैमिली एंड केयर गिवर्स टू हेल्प अश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन. सबसे डिस्कस करें, कोलैबोरेशन विद द पेशेंट, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू डेवलप एंड अचीव ऑप्टिमल गोल ऑफ द थेरेपी. अच्छा, यहाँ हमारे 40 मिनट एक्चुअली पूरे होने वाले हैं, मुझे वार्निंग आई थी अभी, तो अभी मैं एक स्लाइड करके खत्म कर दूंगा क्लास, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. MTM as a part of the medical care, part B, drug benefit of the PDP and MAPD. Medical care, part D, prescription drug plan, इसको prescription drug PDP कहते हैं, and medical care advance plan MAPD must have a MTM, medical treatment management program एक बनाए that provide appropriate services to. ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्टिमम थेरेपेटिक आउटकम है यूजर पार्ट डी. अंडर पार्ट डी टारगेटेड बेनिफिशियरीज आर जनरली दोस्त, कौन होता है, विद मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस है, उसके साथ टेकिंग मल्टीपल कवर्ड पार्ट डी मेडिकेशन, कई दवाएं ले रहा है, एंड likely to incur annual medication costs that exceed a certain level. करंटली उसको $4,000 का इंश्योरेंस कवरेज है, मगर वो बेचारा दवाई ले रहा है, उसको 5,000 का बिल आ गया, ये भी आपने कंसीडर करना है. पार्ट डी प्लान, ये पार्ट डी प्लान कहलाता है. पार्ट डी प्लान हैव significant discretion in determining the number and type of the chronic condition and the number of Part D medication that will qualify their beneficiary to receive MTM services. तो मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देने से पहले तमाम चीजें आपने कंसीडर करनी है. As a result, there is a considerable variation between the Part D plan, both with regards to who can receive MTM services, medical treatment services कौन ले सकता है वो देखेंगे, सर्विसेज एंड द टाइप एंड द कॉम्प्रिहेंसिव डिसाइड करेंगे कि हमें किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है. एक पूरा प्लान होता है, ठीक है. Then we will see the variation. While understanding at the onset of the Part D program is now resulting in some beneficiaries who could benefit from such services not qualify for them within their plan. हो सकता है कि कुछ लोग MTM पे ना जाए,
मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का जो पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें पार्ट बी भी आता है, मेडिकल केयर पार्ट बी, जिसमें बेनिफिट्स में आपको बता दिया है, जैसे पीडीपी बनाया है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान आप उसका क्या बना के देंगे, फिर आपने एमएपीडी बनाया कि मेडिकल एडवांस प्लान उसको क्या बना के देंगे। ये सब एमटीएम के थ्रू करेंगे, मगर हर पेशेंट एमटीएम में फिट नहीं होगा क्योंकि लाजमी उसकी लिमिटेशन होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब मुझे आप याद दिला दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है स्लाइड नंबर 91 से हम शुरू करेंगे कि एमटीएम इज नॉट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग और अ डिजीज मैनेजमेंट। एमटीएम सिर्फ छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग का नाम नहीं है, डिजीज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, इसमें सारी ड्रग्स आपकी इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई इसकी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। राइट, खुदा हाफिज़।